اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے پچھلی 30 ویڈیوز میں 29 ویڈیوز میں ہم نے جو کچھ بھی جانا وہ سب عقائد کے متعلق تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، اس کی صفات، اس کے افعال کے متعلق ہمیں اپنے کیسے عقائد کو رکھنا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیسے عقائد رکھنا ہے، اور دیگر انبیاء کے بارے میں ہمیں اپنے عقائد کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے قیامت ہے، حشر و نشر ہے، اور حساب و کتاب، ان چیزوں کے بارے میں ہمارے جو عقائد ہیں ان عقائد کو ہمیں کیسے رکھنا ہے، ہمارے ان کے بارے میں عقیدے کیسے ہونے چاہیے، یہ سب ہم نے جانا۔ لیکن اب یہاں سے ہم عقائد کا بیان نہیں بلکہ مسئلے مسائل کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہم وہ چیزیں یاد کریں گے اور وہ چیزیں سمجھیں گے جو ہماری زندگی کو اور ہماری عبادت کو بہتر بنانے میں ایک اہم رول نبھاتی ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کو سیکھ کر کے ہم اپنی عبادات کو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں بحر شریعت کے دوسرے حصے کی، جس میں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے مسئلے مسائل کو جو ہماری زندگی میں روزمرہ میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، جن کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم یہاں سے انشاءاللہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہم بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے۔ دوسرے حصے میں امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو بیان لکھا ہے، جو سب سے پہلا بیان شروع کیا ہے، وہ طہارت کا بیان ہے، پاکی کا بیان یعنی۔ تو ہم چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی، بے ادبی کی اور توہین کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے یعنی پاکی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے والے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے، اور طہارت کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے پاکی کا ہونا، پاک ہونا، اور طہارت کا ہونا بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ہی وہ چیز ہے کہ جو اگر کامل نہ ہو تو اس کی وجہ سے قرأت میں یعنی کہ قرآن تلاوت کرنے میں نماز میں امام کو شبہ یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے، متشابہ لگتا ہے۔ تو جب طہارت کامل نہ ہو تو اس کا وبال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر امام کی قرأت پر پڑتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ ہم اگر بے وضو ہوں گے، بے غسل ہوں گے، اور طہارت نہیں ہوگی ہماری، ہم ناپاک ہوں گے، اور ناپاکی کی حالت میں اگر ہم نے نماز کو پڑھا تو ہم نے ایک تو اللہ کی عبادت کو بے ادبی کی، اس کی، اور اس کی توہین کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا وبال کیا ہوگا وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس کے بتائے سے رسول جانتے ہیں۔ لیکن اب آئیے آگے کے مسائل کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ۔ اب طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں، طہارت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل ہے، یعنی طہارت صغریٰ یعنی چھوٹی طہارت جسے وضو کہتے ہیں، اور طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت جسے غسل کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ان سب کو، ان کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر وہ اصطلاحات ذکر کی جاتی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کیا ہے، مباح کیا ہے، گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فرض اعتقادی، فرض کی بھی 2 قسمیں، ایک فرض اعتقادی اور ایک فرض عملی۔ فرض اعتقادی کیا ہے؟ فرض اعتقادی وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوا ہو، اور یعنی اس میں اس کی دلیل میں کوئی شبہ، کوئی شک یا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، یعنی کہ ائمہ حنفیہ تقلید کے امام 4 ہیں، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور دوسرے حضرت امام شافعی، تیسرے حضرت امام مالک، اور چوتھے حضرت امام حنبل۔ ان چاروں میں سے
جو अपने अपने मानने वाले हैं उनके अपने अपने मसाइल हैं। हम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा को मानने वाले हैं जिनका नाम नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैहि है, जिनके मानने वाले हैं तो वो हनफी हैं, तो हम अपने आगे हनफी लगाते हैं। तो अइम्मा हनफिया के नजदीक मुतलकन काफिर है। कौन काफिर है? जो दलील कतई से चीज साबित हो और उसका इनकार करे, और अगर उसकी फर्जियत दीन इस्लाम का आम खास पर रोशन वाज़ेह मसला हो, जब तो उसके मुनकर के कुफ्र पर इजमा कतई है। यानी कि कोई ऐसा काम है जो फर्ज है दीन इस्लाम में, लेकिन उसकी फर्जियत, उसका फर्ज होना आम और खास, यानी उलमा को भी पता हो, उस पर रोशन हो, उलमा भी जानते हो, और उनके बताए से अवाम भी जानती हो, अवाम को भी ये बात मालूम हो कि ये चीज फर्ज है। अगर उस चीज का इनकार कर दिया तो फिर उसके कुफ्र पर इजमा कतई है, यानी कि वो काफिर हो ही जाएगा इजमा कतई से। और ऐसा कि जो उस मुनकर के कुफ्र में शक करे तो खुद काफिर हो जाएगा, और ऐसा काफिर हो जाएगा कि अगर उसके कुफ्र में कोई शक भी करेगा तो वो खुद काफिर हो जाएगा। और बहरहाल जो किसी फर्ज एतकादी को बिला उज़्र सही शरई कसदन एक बार भी छोड़ेगा तो वो फासिक और मुर्तकब कबीरा और मुस्तहिक़ अज़ाब नार होगा। जैसे नमाज है, रोजा है और रुकू है, सुजूद है, इन चीज की फर्जियत जो है वो अवाम और खास हर चीज, हर किसी पर उसकी फर्जियत रोजे रोशन की तरह आया है। और आगे फरमाते हैं कि फर्ज अमली, यानी कि वो फर्ज एतकादी की तारीफ थी। फर्ज अमली क्या है? फर्ज अमली वो जिसका सबूत ऐसा कतई ना हो, यानी कि जो दलील कतई से साबित हो उसे फर्ज एतकादी कहते हैं, लेकिन उससे कम दलील से अगर साबित हो उसे फर्ज अमली कहते हैं। मगर नजर मुजतहिद में बहुक्म दलाइल शरइया जज्म है कि बे उसके किए आदमी बरियुल जिम्मा ना होगा। यहां तक कि अगर वो किसी इबादत के लिए फर्ज है तो वो इबादत बे उसके बातिल और कल अदम होगा, और उसके बेवजह इनकार करने वाला फिस्क और गुमराही में है। हाँ, अगर कोई शख्स के दलाइल शरिया में नजर का अहल है, दलील शरई से उनका इनकार करे तो कर सकता है। जैसे अइम्मा मुज्तहिदीन के इख्तिलाफात के एक इमाम किसी चीज को फर्ज कहते हैं और दूसरे नहीं। मसलन हनफी के नजदीक चौथाई सर का मसा वजू में फर्ज है, लेकिन शाफिया के नजदीक एक बाल, और मालिकिया के नजदीक पूरे सर का, और हनफिया के नजदीक वजू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नियत का होना सुन्नत है। लेकिन हम्बलिया हैं, शाफिया हैं, उनके नजदीक फर्ज और उनके सिवा और भी बहुत सारी मिसालें हैं। इस फर्द अमली को अगर हर शख्स उसकी पैरवी करे, फर्द अमली में हर शख्स उसकी पैरवी करे जिसका मुकल्लिद है, अपने इमाम के खिलाफ बिला जरूरत शरई किसी दूसरे की पैरवी जायज नहीं है। यानी कि अगर हनफी लोग हैं, यानी हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, उनके मुकल्लिद हैं, तो फिर वो उन्हीं की मसले मसाइल पर बताए हुए रास्तों पर चले, उन्हीं के मसले मसाइल को फॉलो करे, उन्हीं पर अमल करे। लेकिन अगर कोई शाफी है तो वो शाफी के मसलक के मसले मसाइल को जाने। ऐसा नहीं है कि कोई शाफी है तो वो हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के मसले मसाइल पर अमल करे, या कोई हनफी है तो वो शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसले मसाइल पर अमल करे। नहीं, बल्कि जो जिस इमाम की तकलीद कर रहा है, जो जिस इमाम के मुकल्लिद है, वो उसी की तकलीद करे और उसी के बताए हुए मसलों पर अमल करे, और उसके अलावा किसी दूसरे की पैरवी जायज नहीं है। अब आते हैं वाजिब एतकादी। वाजिब एतकादी क्या है? वो दलील ज़न्नी कि उसकी जरूरत साबित हो, और फर्ज अमली वो वाजिब अमली, इसकी दो किस्में हैं और वो उन्हीं दो में मुनहसर है। वाजिब अमली किसे कहते हैं? वो वाजिब एतकादी कि बे उसके किए भी बरियुल जिम्मा होने का एहतमाल हो, मगर गालिब जन उसकी जरूरत पड़ रही है, और अगर किसी इबादत में उसका बजा लाना दरकार हो तो इबादत बे उसके नाकिस है मगर अदा हो जाए। मुज्तहिदीन दलील शरई से वाजिब का इनकार कर सकता है, और किसी वाजिब का एक बार भी कसदन छोड़ना गुनाह सगीरा और चंद बार तर्क करना गुनाह कबीरा हो जाता है। अब आते हैं सुन्नत मौक़िदा किसे कहते हैं? वो जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयान जवाज के वास्ते कभी तरक फरमाया हो, या वो कि उसके करने की ताकीद फरमाई हो मगर जानिब तर्क बिल्कुल मसदूद ना फरमा दी। उसका तर्क असात और करना सवाब, और नादिरन तर्क पर इताब और उसकी आदत पर इस्तेहकाक अजाब है। यानी कि सुन्नत मौक़िदा जैसे कि ज़ोहर से पहले की जो 4 रकतें हैं, यानी उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ा हो, लेकिन जायज करने के लिए कभी छोड़ भी दिया हो, और इसका ऐसा करना कि उसका तर्क करना यानी उसका छोड़ना गुनाह है और उसका करना सवाब है। सुन्नत गैर मौक़िदा वो कि नजर शरा में ऐसी मतलूब हो कि उसके तर्क को नापसंद रखे, मगर ना इस हद तक कि उस पर वईद अज़ाब फरमाए। आम अज़ीम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुदावमत फरमाई या नहीं, इसका करना सवाब और ना करना अगरचे आदतन हो मौजिब इताब नहीं। यानी सुन्नत गैर मौक़िदा ऐसी है कि अगर उसको छोड़ देगा तो शरा ने उसको नापसंद फरमाया है। ऐसा नहीं कि उसने नाजायज काम कर दिया या हराम काम कर दिया या उसने गुनाह वाला काम कर दिया उसको छोड़ करके, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने
शरा में उसके लिए नापसंद, उसने नापसंदीदा काम किया, उसको छोड़ करके अगर पढ़ लेता ज्यादा बेहतर है। यानी कि उसको पढ़ना सवाब है, लेकिन अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो उसको पढ़े, या वाजिब नहीं है वो चीज, बल्कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है। उसको पढ़ना बेहतर है और पढ़ना पसंदीदा है, सवाब का काम है, और छोड़ना नापसंदीदा है। लेकिन अगर आदतन भी हो तब भी उस पर कोई इताब नहीं है। और फरमाते हैं कि मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब की तारीफ क्या है? वो कि नजर शरा में पसंद हो मगर तर्क पर कुछ नापसंदी ना हो, ख्वाह खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किया या उसकी तरगीब दी या उलमा इकराम ने पसंद फरमाया, अगरचे हदीस में इसका जिक्र ना आया, इसका करना सवाब और ना करने पर मुतलकन कुछ नहीं। यानी मुस्तहब वो काम है जिसका करना सवाब, यानी करेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसके ना करने पर हमें अजाब मिलेगा या हमें सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि और फरमाते हैं कि मुबाह वो जिसका करना और ना करना दोनों बराबर हो, यकसा है, दोनों बराबर है। अगर करेगा भी तब भी कोई मुज़ायका नहीं और ना करेगा तब भी कोई मुज़ायका नहीं है। और हराम कतई ये फर्द का मुकाबिल है, इसका एक बार भी कसदन करना गुनाह कबीरा, फिस्क और बचना फर्द सवाब है। यानी कि हराम कतई जो है वो उसका बचना सवाब और जरूरी और फर्ज है। और मकरूह तहरीमी ये वाजिब का मुकाबिल है, इसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनहगार होता है, अगरचे उसका गुनाह हराम से कम है और चंद बार इसका इर्तिकाब कबीरा है। यानी कि हराम से कम है इसका दर्जा, लेकिन चंद बार अगर इसको कर लिया तो वो हराम के मुकाबिल पहुंच जाता है, बड़े इर्तिकाब कबीरा यानी बड़े गुनहे में शुमार होता है उसका मकरूह तहरीमी का। और इसी तरह इसाअत जिसका करना बुरा हो और नादिरन करने वाला मुस्तहक इताब और इल्तिजाम फ़िल पर इस्तेहकाक के अज़ाब, ये सुन्नत मुअक्कदा के मुकाबिल है। और मकरूह तंज़ी जिसका करना शरा को पसंद नहीं मगर ना इस हद तक कि उस पर वईद अज़ाब फरमाए, और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुकाबिल है। खिलाफ औला वो कि ना करना बेहतर था, किया तो कुछ मुज़ायका नहीं, अज़ाब व इताब नहीं, ये मुस्तहब का मुकाबिल है। इनके बयान में इबारतें मुख्तलिफ मिलेंगी मगर यही इतर तहकीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।